Hello everyone, welcome to Academic Tech. This is good news for you if you are a pharmacist looking to market Australia. So बहुत time से people are waiting to get the invitation. But right now Western Australia happened last week. Basically एक round उन्होंने किया था. There's a lot of pharmacists got the invitation. So we will discuss in this video it with information. If you are a pharmacist already passed this CAPS exam and English and you are ready to file your EOI or you already filed your EOI and you are waiting, तो कितने पॉइंट पे वीज़ा मिल रहा है, whether it is retail pharmacist, hospital pharmacist, industrial pharmacist or pharmacy technician. So we will discuss in this video. My name is Dr. Akram Ahmed. I'm always make videos for you. If you are new in my channel, please like and subscribe my videos. तो चलिए start करते हैं. Hello everyone, welcome back. We are basically on the screen. You can see this is the Western Australia government website. And you can see here, so this video is going to be in two parts because बहुत लंबा हो जाएगा otherwise, कि एक part में we'll discuss the requirement for Western Australia. If you are a pharmacist, you already passed CAPS exam plus English and you are ready to file, so you need must know कि भाई minimum requirement क्या है, या or you are a pharmacist and looking to write the exam, or in future also this is also very important for you before कि भाई क्या क्या requirement है before you take your decision. तो basically state nomination migration program होता है for the subclass 190 visa. This is direct PR visa, and another visa is called skilled work regional. This visa is also called subclass 491. So basically both visas are generally given for the 5 years, and you can see here they are saying that an extra point 190 में 5 पॉइंट एडिशनल मिलते हैं और 491 में 15 पॉइंट मिलते हैं 491 वीजा के लिए. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए 65 पॉइंट योर ऑन, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 190 वीजा देन यू विल गेट 5 पॉइंट, मींस यू आर अप्लाइंग फॉर 70 पॉइंट. बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 491 यू विल अप्लाइंग फॉर द 80 पॉइंट, क्योंकि 15 पॉइंट आपको मिलते हैं इसके अंदर. तो लेट्स सी कि भाई इसका रिक्वायरमेंट क्या है. मतलब ये तो दोनों वीजा कौन कौन अप्लाई करता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. देखिए यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है कि जनरल स्ट्रीम WSMOL शेड्यूल 1 एंड WSMOL एंड शेड्यूल 2. शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड ग्रेजुएट स्ट्रीम, ये 3 स्ट्रीम्स में यहाँ पर वीजा दिया जाएगा. तो इन जनरल इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं. दो ओनली कैन अप्लाई. दिस इज फॉर बेसिकली 2024-25 की जो वीजा है उसकी हम बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा है कि आपका स्किल असेसमेंट होना चाहिए इन जनरल when you are applying, और जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो कंडीशंस है वो आपको मीट करना चाहिए. सेकंड पॉइंट पर हम देखें नॉमिनेट ऑक्यूपेशन अवेलेबल रेलिवेंट आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए. सो वेदर यू आर ए रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, ये सारे लिस्ट के अंदर हैं. नो नीड टू वरी, ये आपका लिस्ट में आता है ना. देन इज सेइंग मीट मिनिमम इंग्लिश रिक्वायरमेंट. तो ये भी अगर आप देखें तो इंग्लिश तो ऑलरेडी आपने जो है कैप्स पास किया है, यू ऑलरेडी हैव सम ऑफ यू ऑलरेडी हैव योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो आपने ऑलरेडी इंग्लिश का एग्जाम पास किया है. दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ these are the two points are very important. So if you see here, this is for schedule 1, schedule 2 or graduate stream. So if you are a student and coming to Australia, or you are studying in Western Australia, in that case there is no work experience required. Without work experience you can file your EOI. आप उसके उस पर आप कर सकते हो. And if you are in your home country, आपने एग्जाम पास किया and you are in India or in your home country, in that case you must have at least 1 year working experience. मैं हमेशा बहुत टाइम से, पिछले 6 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ऑलवेज बोलता हूँ बहुत टाइम से कि भाई यू नीड टू वर्क इन योर ओन फील्ड. ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो है जस्ट एग्जाम ही पास करना है, और यू आल्सो नीड बेसिकली टू हैव एक्सपीरियंस. तो आपको जो प्रिपरेशन करना है वो साथ साथ करना है. व्हेन यू आर आपको एग्जाम प्रिपरेशन भी करनी है, साथ में आपको जॉब भी करना है, वेदर इट इज स्मॉल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी, कहीं भी जॉब करेंगे. तो एट द एंड क्या होगा, जैसे आप एग्जाम पास कर लेंगे तो आपके पास में एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा. बिकॉज इन होल प्रोसेस में इतना टाइम तो लग ही जाता है. इसको असेसमेंट आप कराएंगे 2-3 महीने उसमें लग जाएंगे. फिर आप प्रिपरेशन करेंगे, अपना एग्जाम पास करेंगे, और 2 चीज में 1 साल हो ही जाएगा. तो ये क्या बोल रहा है कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर 491, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 191 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे ना. नाउ द नेक्स्ट लाइन दे आर सेइंग इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर 491, ठीक है,
491 में आप करते हैं तो उसमें एटलीस्ट आपके पास में जॉब एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए अपना फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई कंपनी मिल जाती है, इन दैट केस यू आल्सो कैन फाइल द 190 वीजा, अदरवाइज यू ओनली कैन अप्लाई द 491। तो जो फार्मासिस्ट है WS-MOL की वन की लिस्ट में आता है, यू कैन हैव अ लुक। एंड स्ट्रीम तो यही है, जो बच्चे यहाँ पे आकर कोई यहाँ पर डूइंग मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या MBA और एनी अदर कोई वाट एवर कोर्स यू आर डूइंग फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन दैट केस आपने कोर्स किया है वहां से, तो उस केस में ये जो है रिवर हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस करना है। तो सिंपल बात ये है कि 1 लाख एक्सपीरियंस होना चाहिए 491 को। 190 के लिए आपको पास में अगर जॉब ऑफर लेटर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देन ओनली यू कैन अप्लाई। बट इफ you are a student from Western Australia, in that case, no need to, have any experience. I always said basically कि there are 3 ways to come Australia. वन तो यही है, PR वीजा आपको मिल जाती है 190 या 491, 491 इज a रीजनल स्पॉन्सर्ड वीजा। और अगर ये नहीं मिलती है देन यू कैन फाइंड ए जॉब एंड आपको स्पॉन्सर मिल सकता है, तो आपको वर्क वीजा पे आ सकते हो, लाइक 482 494। और यहाँ पर भी आप 190 भी कर सकते हो अगर आपको पास जॉब ऑफर लेटर है तो। और तीसरा आता है वो है कि अगर आप स्टडी करने आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यू ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू पास द एग्जाम, इन दैट केस आल्सो आपको बहुत ही इजी रहेगा ऑल दो थिंग्स। तो दिया आर सम स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, आप खुद से फॉलो कर सकते हो। बट मोर इन्फॉर्मेशन बेटर ये रहेगा कि किसी आप मारा एजेंट के थ्रू करें, दैट विल बी गुड थिंग। बट आप अपना भी कर सकते हैं, कोई इतना उसमें वो नहीं, बहुत ही पूरा इजी वे में उन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ। तो ये है यहाँ का इनका रैंकिंग सिस्टम ने पूरा बताया हुआ है यहाँ पर, एंड इफ यू आर गोइंग करंट राउंड के यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो करंट राउंड जो हुआ था वो है 16 अगस्त 2024 को ये राउंड हुआ था। और इसमें जो है कितने कितने विकेट दिए में बताया हुआ है, यहाँ पर 100 को यहाँ दिया गया था, देन इसमें 100 को दिया, 70 75 को यहाँ दिया गया, 20 25 को यहाँ पर दिया गया है तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली इफ यू आर डूइंग MPH और मास्टर ऑफ PhD, देन यू विल कम टू द हायर एजुकेशन में आप आएंगे। तो इतने इतने लोगों को इन्होंने वीज़ा दिया गया है। तो देखते हैं कि इन्होंने फार्मासिस्ट को कितने पॉइंट पे वीज़ा दिया गया है, स्पेशली इफ़ यू आर रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन को कितने कितने पॉइंट पे वीज़ा दिया गया, कितने टाइम में, लाइक बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे अराउंड, आई नो। बट दिस फर्स्ट राउंड है, बहुत सारे राउंड और भी हो सकते हैं अगले वाले राउंड में, और भी होगा, तो हम विल सी इन दिस। तो यहाँ पे आप पूरा ये लिंक दिया हुआ है हमें डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन वॉच। तो पार्ट 1 हमको हम यहीं पे खत्म करते हैं, देन विल सी टू द पार्ट 2 में, देखते हैं कि कितने पॉइंट्स पे वीज़ा दी गई है। वो आज ही अपलोड होगी वीडियो, तो यू कैन हैव अ लुक। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।